formula A is equal to the truth value of B for every possible combination of truth value of its component, then A and B are said to be equivalent. अगर एक कंपाउंड स्टेटमेंट है और उसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू अ कंपाउंड स्टेटमेंट बी इन एवरी केस, देन दे बोथ आर इक्विवेलेंट. ओके, इसके जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं लाइक ऐसे ही कंपाउंड स्टेटमेंट आपको दी जाएगी एंड यू हैव टू सॉल्व इट विदाउट ट्रुथ टेबल और विद ट्रुथ टेबल. अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है तो आपकी चॉइस है कि आप उसको ट्रुथ टेबल बना के करें या फिर विदाउट ट्रुथ टेबल करें. अगर मेंशन है तो आपको उससे करना पड़ेगा, अगर नहीं मेंशन तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल है P implies Q is equivalent to negation of Q implies negation of P. ये दोनों इक्विवेलेंट हैं. हमें ये प्रूव करना है. अगर हम ट्रुथ टेबल से करें तो हमें इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे जो है ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स. एंड P implies Q will be Q के पास false होना चाहिए and P के पास true होना चाहिए. That is case number 2. Then output will be false and else it will be true. This is LHS, right? In RHS we need negation of P and Q. Negation of Q will be false, true, false and true. Negation of P is false, false, true and true. So अगर हम इन पे कंडीशनल स्टेटमेंट अप्लाई करें दैट इज negation of Q implies negation of P, यानी कि P के पास false होना चाहिए Q के पास true होना चाहिए. That is this condition case number 2. Then output will be false, else it will be true. And you can see LHS equal to RHS. LHS equal to RHS, so we can say they both are equivalent. अगर आप एक चीज़ और नोटिस करें, so this is conditional statement, and in the last video we learned about contrapositive. So ये इसका contrapositive हुआ. So this says कि conditional statement is equivalent to its contrapositive. अगर हमें इसको without truth table कैसे solve करेंगे? With the help of laws. That is logical equivalence. ये कुछ laws हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे to prove equivalence. First is idempotent law. That says P or P is equivalent to P, P and P is equivalent to P. आप चाहे तो इसको ट्रूथ टेबल से भी याद कर सकते हैं, like P has true and false, and that is if we write P again that also has true and false. And अगर हम इसको और करें true will give true, false will give false, इसका ऐड करें then it is also true and this is false. You can see अगर एक ही वेरिएबल का ऐड एंड और करें तो हमें वही वेरिएबल वापस मिल जाएगा. Similarly we have identity law that says अगर हम एक वेरिएबल को और करें ट्रू के साथ तो हमें वैल्यू मिलेगी ट्रू. लाइक P has true and false. अगर हम इसको ट्रू के साथ ट्रू इज नथिंग ओनली द ट्रू वैल्यू. अगर हम इनका और करें T and T will be T, F and T will be T and both are T यानी कि ट्रू. अगर हम इसका ऐसे ही फॉल्स के साथ करें लाइक इफ वी हैव फॉल्स यानी कि बोथ वैल्यू विल बी फॉल्स. अगर हम इसका और
इसका और करें, T और F will be T and F or F will be false. You can see this is similar to P. So अगर हम इनका और करें that will be equal to P. Similarly अगर AND करें P and T is equivalent to P and P and F is equivalent to F. अब इसको लॉजिकली भी कर सकते हैं, लाइक अगर हम AND करते हैं तो हम यही देखते हैं अगर एक भी फॉल्स हुआ तो आंसर फॉल्स होगा, और अगर हम एक स्टेटमेंट का AND कर रहे हैं फॉल्स के साथ तो ऑब्वियस है उसके हर एक केस में फॉल्स होगा, सो आंसर विल बी फॉल्स, राइट। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव इज लाइक P और Q इज इक्विवेलेंट टू Q और P। ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप जो स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं वही है। P और Q is equivalent to Q and P. Similarly with AND also it holds the same quality. Similarly with AND also. In associative, if we have P or Q or R and there is a bracket with P and Q, so we can shift the bracket to Q and R. That is also equivalent because अगर हम 2 plus 3 plus 1 करें, ये 2 plus 3 plus 1 करें, the answer will be same, right? So this is associative law. Next we have distribution law. That is P or Q and P is equivalent to, अगर P और Q and P है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, P और Q and P और P, that is sorry R, P and R. So P or R, this is a distribution law जिसमें अंदर वाला ब्रैकेट ओपन करके हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं P और Q, then and P और R. Next we have complement law. That says अगर हम P का नेगेशन P से और करें तो हमें ट्रू मिलेगा, like P has true and false, negation P has false and true, and अगर हम इसका और करें that is true and that is also true, so we will get true. Similarly अगर हम इसका AND करें, इन दोनों का AND करें, this will give false and this will give false, so अगर हम AND करें तो हमें false मिलेगा। ये कुछ लॉज है जो आपको याद करने पड़ेंगे टू प्रूव इक्विवेलेंस। दैट इज क्वाइट इजी क्योंकि इसमें से कुछ लॉ पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। हियर आर सम एग्जांपल। एक एग्जांपल मैंने ट्रुथ टेबल से सॉल्व करने के लिए लिया और एक इक्विवेलेंस लॉज से, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे करते हैं। हमें शो करना है P implies Q is equivalent to negation of P or Q. We learned in last lecture that is P implies Q equal होता है negation P और Q से, जो मैंने आपको कहा था कि आपको याद करना पड़ेगा बिकॉज ये एक तरीके से एक ही चीज़ है एंड ये नॉर्मल फॉर्म्स में बहुत हेल्प करेगा। अब हमें इनको लॉजिकली इक्विवेलेंट डालना है, हमें प्रूफ करना है कि ये सच में इक्वल है कि नहीं विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। सिंपली वी विल बिल्ड अ ट्रुथ टेबल फॉर P and Q and you are familiar with this. P implies Q will be
पास फॉल्स होना चाहिए, P के पास ट्रू होना चाहिए, दैट इज केस नंबर 2. सो आउटपुट विल बी फॉल्स एंड Z विल बी ट्रू, राइट. एंड दिस इज LHS. RHS के लिए हमें नेगेशन ऑफ P करना पड़ेगा. नेगेशन P विल बी ट्रू का फॉल्स बन जाएगा, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू. Sorry, I made a mistake. It is false. So ये बन जाएगा true and false will be false will become true, right? So हमें अब conjunction करना है negation P का Q के साथ, यानी कि कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 2 का हमें और करना है. So true or false is true, false or false is false, true or true is true, false and true is false. Sorry, false or false, false or true is true. क्योंकि कंजंक्शन रूल क्या कहता है, अगर एक भी ट्रू है देन आंसर विल बी ट्रू, अगर बोथ फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा. सो दिस इज RHS. You can see that column number 3 and 5 are identically same. So you can say they both are logically equivalent, right? हमें प्रूफ करना है कि negation of P और negation P and Q is equivalent to negation P and negation Q. So RHS is हमें इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फर्स्ट ब्रैकेट खोलना पड़ेगा और नेगेशन हटाना पड़ेगा. तो उसके लिए हम कौन सा लॉ यूज कर सकते हैं, दैट इज एक लॉ था P और Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन बोथ साइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और जो कनेक्टिव है वो उल्टा हो जाता है, राइट. नेगेशन P नेगेशन Q एंड जो कनेक्टिव है वो उल्टा हो गया. ये कौन सा लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ. सो हम यही अप्लाई करेंगे यहाँ पे. नेगेशन इसके पास चला गया और एक नेगेशन इसके पास चला गया, जो बीच में कनेक्टेड था जो भी था, और यहाँ बन जाएगा एंड दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ. एंड अब दूसरा ब्रैकेट हटाना है तो हम सेम फिर से वही डी मॉर्गन्स लॉ लगेगा एंड ये नेगेशन बोथ साइड चला जाएगा. नेगेशन ऑफ नेगेशन P, दिस विल बिकम नेगेशन P का नेगेशन एंड नेगेशन Q एंड का हो जाएगा और. दिस इज ऑल्सो डी मॉर्गन्स लॉ. आपको हर स्टेप में लॉ का नाम लिखना पड़ेगा, दैट इज कंपल्सरी. एंड नाउ वी कैन डू, हमें ये नेगेशन सॉल्व करना है. सो क्योंकि प्रेसिडेंस में नेगेशन को फर्स्ट रूल मिलता है तो ये दो नेगेशंस, राइट. सो नेगेशन का नेगेशन विल बी else will remain same. negation is P. ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट्स में. that is negation of P is equal to P. Okay. So now what we can do distribution law and P को both side distribute कर देते हैं. negation of P and P और negation of P and Q. What we have done is distribution law.
and we saw the negation of P, and P will give false in complement law. कॉम्प्लीमेंट लॉ में देखा था कि नेगेशन का एक वेरिएबल का नेगेशन और उस वेरिएबल को अगर हम ऐड करें तो आउटपुट फॉल्स मिलता है, और नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। अगर हम फॉल्स का किसी के साथ और करें, सो फॉल्स का किसी के साथ और करें जो कि हमने आइडेंटिटी लॉ में देखा था, सो हमें वही कंपाउंड स्टेटमेंट आउटपुट में मिल जाता है, दैट इज नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, और दैट इज इक्विवेलेंट टू RHS, सो हेंस आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया, एंड इफ अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट, आई विल सॉल्व इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।